जिनको अच्छा रिजल्ट मिला है, रिजल्ट सबको अच्छा ही मिला है, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने लोगों को हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे और उनको शॉर्ट में 2 मिनट में बताना है कि कितने टाइम से ले रहे हैं और क्या प्रॉब्लम था और अभी क्या स्थिति है। तो पहले हम मिसेस मेघवाल को बुलाएंगे, प्लीज वेलकम। जोरदार ताली। મને લગભગ 12 વર્ષથી થાઇરોઇડ હતો. મને 12 વર્ષથી થાઇરોઇડ હતો લગભગ, અને છેલ્લા 6 મહિનાથી આ દવા ખાઉં છું. અત્યારે મને બિલકુલ થાઇરોઇડ નથી. આપણી વચ્ચે કામરેજથી આવેલા છે અનિલ મિસ્ત્રી સાહેબ, જેમને પણ ઘણા બધા રિઝલ્ટ મળેલા છે, તો એ અહીંયા આવશે સ્ટેજ પર. પ્લીઝ વેલકમ. ઇમ્યુનિટ કેપ્સ્યુલથી અનબિલીવેબલ રિઝલ્ટ લીધા છે. પહેલું જ રિઝલ્ટ અમે કેન્સરમાં લીધું છે. લેટેસ્ટમાં અત્યારે 2 વર્ષની છોકરી જે જન્મથી જ કોઈ દિવસ બેઠી નથી, હલન ચલન પણ નહીં હતું, એની ડોકી આમ લબડી પડતી હતી, પકડવી પડતી હતી મમ્મીએ, એવી છોકરીને રિઝલ્ટ લીધું છે. ફક્ત 3 મહિનામાં એ છોકરી બેસતી થઈ ગઈ છે, ડોકી એની ટટ્ટાર રહી છે, પકડવી નથી પડતી, હાથ પગમાં હલનચલન આવ્યું છે, ઓળખે છે, હસે છે, બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને મને આશા છે કે ટૂંક સમયમાં એ ચાલતી પણ થઈ જશે. એવું જ જે બેન હમણાં થાઇરોઇડનું રિઝલ્ટ કહી ગયા, 12 વર્ષની છોકરી, 12 વર્ષની છોકરી, એની મમ્મીને પણ થાઇરોઇડ હતો, થાઇરોઇડનું કેન્સર હતું, થાઇરોઇડની ગ્રંથિ એની મમ્મીને કાઢી નાખેલી હતી. એની મમ્મીને ડાઉટ હતો કે એની છોકરીને પણ કદાચ એવું જ થશે. એ છોકરીને 1 વર્ષ પહેલાં થાઇરોઇડનો ડિસીઝ ડિક્લેર કરેલો હતો. 1 વર્ષ દરમિયાન એટલી બધી એ લોકોએ દવા લીધી, એ છોકરી ટેબ્લેટ લેવાનું જ ના પાડતી હતી. પછી એમને આપણે વાત કરી અને મેં કહ્યું કે કેપ્સ્યુલ ન લઈ લો કંઈ વાંધો નહીં, અમારી પાસે સ્મૃતિ રીચ પાવડર પણ છે, તે લો. તો સ્મૃતિ રીચ પાવડર 5-5 ગ્રામ 2 ટાઈમ લેતી હતી. 1 મહિનામાં 70% જેટલી રિકવરી આવી છે. થેન્ક યુ સાહેબ. આપણી વચ્ચે અહીંયા એક છે સારાંગા મેડમ, જેમના થ્રુ શાંતારામ પાટીલ કરીને છે, એમને બહુ જોરદાર રિઝલ્ટ મળેલું છે. તો હું સારાંગા મેડમને રિક્વેસ્ટ કરીશ અહીંયા આવશે ને એમનું માર્ગદર્શન આપશે. થેન્ક યુ સર. હું બેંકમાં સર્વિસ કરું છું. તો મારી સાથે અમારા પ્યુન હતા, જે બેંકના પૈસા ઉચકીને એમને સ્પોન્ડિલાઇટિસ થઈ ગયું. દયાનિધિ રાજીરાવ ચૌધરીનું નામ તમે સાંભળ્યું હશે. એ લોકોએ બી ના પાડી દીધેલી કે ભાઈ તમે ઓપરેશન કરાવશો તો કદાચ બેડ રેસ્ટ થઈ જશો અથવા આવી રીતે જ રહેશો. દવા કરીને થાકી ગયેલા, સુસાઇડ પણ કરી દીધેલું, પણ ઉપરવાળાની મરજી હશે કે એની પાસે ઇમ્યુનિટી પહોંચે, જીવી ગયેલા. ડૉક્ટરે કીધું તમે આ શું કહ્યું, એના કરતાં તાપીમાં કૂદીને મરી જવાનું હતું. તો કે હું તરણમાં એ છું સ્પેશિયલ, એટલે કે તરણ સ્પર્ધામાં હું ફર્સ્ટ આવતો હતો, તો તરીને બી કેવી રીતે મળું. જ્યારે મેં આ દવાની એમને વાત કરી, હેલ્થ પોઈન્ટ પર લઈ ગઈ, તો મનસુખભાઈની સામે રડી પડ્યા કે સર હું દવા કરીને થાકી ગયો, હવે હું થાકી ગયો. તો સરે કીધું કે 99.9% હું તમને કહું છું કે આ દવાથી સારું થશે. 1% હું તમને એમ કહું છું કે નહીં થાય, પણ 99.9% તો તમને થશે. તો કે ચાલો આ છેલ્લે ટ્રાય બી મારી લઈએ. આજે 2 મહિનાથી દવા લે છે, જે આમ ચાલતા હતા આમ ચાલતા હતા, તો આમ એકદમ ટટ્ટા ચાલે છે. 1 રોટલી ખાવાના બી અમને ફાફા પડતા હતા. આજે 6 રોટલી, અમારા ટિફિનમાંથી બી રોટલી ખાઈ. હજી બેંકમાં બધા પૂછે કે શાંતારામભાઈ તમે કઈ દવા ચાલુ કરી, તો બસ મને બતાવે છે કે આ મેડમે મને દવા આપી. આજે હું એમની દુઆથી એટલી ખુશ છું કે માણસ મને દુઆ આપે છે. પૈસા તો આપણે કોઈ બી રીતે કમાઈ શકીશું,
પણ આપણે આ દવા લોકો સુધી પહોંચાડીને દુઆ કમાવાની છે. આપણી વચ્ચે બીજા એક સાહેબ અહીંયા ભરૂચથી સ્પેશિયલ આવેલા છે, જેમણે પણ ઘણા બધા લોકોના રિઝલ્ટ લીધેલા છે અને પોતાના ઘરમાં પણ રિઝલ્ટ લીધું છે. તો હું એમને ઇન્વાઇટ કરીશ, રાજેશ મેકવાન સાહેબ, પ્લીઝ વેલકમ. પહેલા જોરદાર તાળીઓ પાડો, કેમ કે આ એવી વસ્તુ આપણી વચ્ચે આવી છે કે જે કદાચ કોઈ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. હું તમને ઘણા બધા તો કેસીસમાં રિઝલ્ટ લીધા છે, પણ હું તમને એવો એક કિસ્સો કહેવા માંગુ છું કે જે કદાચ મેડિકલ સાયન્સ એને કબૂલ કદાચ ના કરે. એક 12.5 વર્ષની છોકરી છે ભાવિક જેતપુરની, અને એને થેલેસેમિયાની બીમારી છે, અને લગભગ દર 22 થી 25 દિવસ દરમિયાન એને લોહી ચડાવવું પડે છે. અને એને ગાડીની અંદર, બહુ ગરીબ છે એ લોકો, અને એને ગાડીની અંદર અમદાવાદ સુધી લઈ જાય છે, અને અમદાવાદમાં એને લોહી ચડાવતા હતા. છેલ્લા લગભગ 7 મહિનાથી હું એમને ફ્રી ઓફ ચાર્જ ઇમ્યુરિચ આપું છું, અને લગભગ છેલ્લા 3 મહિનાથી એમને લોહી ચડાવવાની જરૂર રહી નથી. દોસ્તો, આ એવી વસ્તુ તમારા હાથમાં આવી છે, અને કદાચ ઈશ્વરે તમને બધાને પસંદ કર્યા છે આ જગ્યા પર આવવા માટે. તમે લોકો આને એવું ના સમજશો, કોઈ ખરેખર ઈશ્વરે તમને અહીંયા પસંદ કર્યા છે આ કામને માટે. તમે એવા લોકો સુધી આ વસ્તુને પહોંચાડો, એટલી બધી દુઆઓ મળશે, અને બે બાઇનરી મળશે. એક બાઇનરી તો રમેશ પાટેલ સાહેબની ઓફિસમાંથી આવે છે, ઉપરવાળાની બાઇનરી ખૂબ મોટા પાયે તમારા માટે. થેન્ક યુ સર. આપણી વચ્ચે બીજા એક ડૉક્ટર સાહેબ ઉપસ્થિત છે. પોતે ડૉક્ટરની પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા ઘણા બધા પેશન્ટોમાં એમણે અનુભવ કરેલા છે, તો એમને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવશે ડૉક્ટર ડાભી સર, પ્લીઝ વેલકમ. ગુજરાતીમાં બોલશે ડૉક્ટર સાહેબ, ચાલશે? ના, ગુજરાતના છીએ તો બધા ગુજરાતીમાં બોલશો ને. તો હું આ કંપની સાથે છેલ્લા 6 મહિનાથી જોઈન થયો છું. આની પહેલાં મેં ઘણી આયુર્વેદિક દવાઓ વિશે હું પોતે એક્યુપંક્ચર ટ્રીટમેન્ટ કરું છું, એટલે મારી પાસે મોટાભાગે બધા ક્રોનિક પેશન્ટો જ આવવાના હોય. સાહેબે વાત કરી કે થાકી જાય, શરીરને સુસાઇડ કરવાનો પ્લાન કરે કે હવે દુનિયામાં ભગવાન જ નથી, કારણ કે એણે ઘણા ખર્ચા કરી નાખ્યા. ઘણા મોટા મોટા ડૉક્ટરો, બોમ્બે ન્યુરોસર્જન, ઓર્થોપેડિક બધા પાસે જઈ આવ્યા હોય, અને પછી છેલ્લે એને વિશ્વાસ એમ થાય કે આ દુનિયા પર ભગવાન નથી, તો ભગવાન હોય તો મારો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. પણ હવે મિત્રો વાત કરીએ આપણે તાવ કોલેસ્ટ્રોલ, ગાયના દૂધની કેપ્સ્યુલ, આ બધી વસ્તુ જે દવાઓ છે એની સાથે લોકો આટલા બધા કંટાળી ગયા, થાકી ગયા, છેલ્લે અમને એમ કે તમે કહેતા હો તો અમે લઈએ. અને અમે તો કહીએ, અમે જેના રિઝલ્ટો લીધા છે, એની જે બ્રોડ ફેક્ટરો છે, એની જે સાયન્ટિફિક બધા રિસર્ચ થયેલા છે, આ બધા વિશ્વના સાયન્ટિસ્ટો કરેલી વસ્તુ, રિસર્ચ કરેલી વસ્તુ છે. અને ગાયનું દૂધ આપણે આમ તો ગાયને માતા તરીકે વર્ષોથી બધા પૂજન કરતા જ હોઈએ છીએ. તો ગાયનું મૂત્ર અને ગાયનું છાણ જો એટલું પવિત્ર હોય તો ગાયના દૂધની અંદર બધા તત્વો હોય જ. મેં ઘણા ક્રોનિક પેશન્ટોની અંદર આપેલા છે. મારા ફાધર ઇન લોની પહેલાં વાત કરીશ કે જેણે એવું કહેવાય કે એસિડિટી માટે એક ફેક્ટરી પોતાની ઓપન કરી શકે એટલો બધો એણે એસિડિટીની દવાઓ પીધેલી છે. દુનિયાની કોઈ પણ નવી એન્ટાસિડથી માંડીને અત્યારે તો નવા સતત મેડિકલ સાયન્સમાં એસિડિટી, ગેસ્ટ્રાઇટિસ માટેની નવી કેપ્સ્યુલો આવી જ રહી છે. રોજની ઘણી લેતા, અને 25 થી 30 વર્ષથી એને ડાયાબિટીસ હતો. અને બેને જે વાત કરી એમ ડાયાબિટીસના કારણે ખભાની અંદર એને ફ્રોઝન શોલ્ડર થઈ જાય, ખભો આખો પકડાઈ જાય. હવે દવા એલોપેથી ગોળી પી શકે એમ નહોતા, કારણ કે એસિડિટી એને સિવિયર હતી, હાઇપર એસિડિટી હતી. મેં કીધું પહેલાં હું એમને ટ્રાય કરું, જો અમને આના રિઝલ્ટ મળે તો દુનિયાના કોઈ પણ પેશન્ટની અંદર રિઝલ્ટ 130% મળી શકે. પણ અંદર સારું આજે એ મારી રોજની 2 થી 3 કેપ્સ્યુલોને પોતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરે છે. લોકોને કહે છે કે આ કેપ્સ્યુલ લો એમ. એટલા બધા સારા રિઝલ્ટો છે. અને બાકી તો કમાણી પણ આની અંદર છે જ. બીજી આગળ વાત કરીશું. થેન્ક યુ. આપણી વચ્ચે બીજા એક ઉપસ્થિત છે, LICના બહુ મોટા એજન્ટ છે અને બહુ સારું એવું કામ કરી રહ્યા છે, રમેશભાઈ મોડિયા, પ્લીઝ વેલકમ. નમસ્કાર. મજામાં? હું તમને રિઝલ્ટ વિશે વાત નથી કરવાનો, થોડી કેરિયર બાબત થોડી વાત કરીશ. અને કે
મારો પર્સનલ અચ્છા, તો એક રીઝન હું તમને માત્ર કહીશ, કારણ કે વધારે સમય નહીં લો, પછી મારે બીજી વાર બોલવા આવવાનું છે એટલા માટે, કે એક સ્કિનનો ડિસીઝ મારી એક પાર્ટીને હતું, જેને લગભગ 18 થી 20 વર્ષથી ભયંકર પ્રોબ્લેમ ચહેરા ઉપર હતો, અને એમને મેં આ વસ્તુ બતાવી, તો મને કે રમેશભાઈ ટ્રાય કરું. બાકી તો મેં મોટા મોટા સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટની ટ્રીટમેન્ટ લઈ ચૂક્યો છું, અને માનસિક રીતે અને આર્થિક રીતે હવે થાકી ગયો છું. તો નો પ્રોબ્લેમ, જસ્ટ ટ્રાય કરો. 13મે દિવસેનો ફોન આવ્યો કે 80% મારા ચહેરા ઉપર રિકવરી છે. એટલે મેં કહ્યું, ભાઈ તમારી પાસે મજાક કરવાના શબ્દો ખૂટી ગયા છે, તો આવી મજાક કરો છો? કારણ કે આવો ક્રોનિક પ્રોબ્લેમ હોય અને 13મે દિવસે 80% રિકવરી આવે, કઈ રીતે માની શકાય? કારણ કે એ વખતે મેં સ્ટાર્ટ કરેલી આ વસ્તુ, મને ખુદને એટલો કોન્ફિડન્ટ નહોતો. ત્યારે મને કહે તમે એક કામ કરો, રૂબરૂ આવીને મને ચેક કરો. પણ મને ટાઈમ ના મળ્યો. લગભગ 1 મહિના પછી જ્યારે રૂબરૂ મળ્યો, ત્યારે 100% એ ભાઈનો ફેસ ક્યોર હતો. આ મારું લેટેસ્ટ રિઝલ્ટ તો આપણી પાસે ઘણા બધા છે, પણ ટાઈમ ઓછો છે, કારણ કે આપણે ડૉક્ટર જયેશ પટેલને સાંભળવાના છે, એમની પાસેથી નોલેજ લેવાનું છે. તો પાછા હું સરને ઇન્વાઇટ કરીશ. પ્લીઝ વેલકમ સર, डॉक्टर जयेश पटेल. चलिए, अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में देखा, रिजल्ट के बारे में देखा. रिजल्ट तो बेहिसाब है, उसकी कोई चिंता मत करिए. पहली बात ये मैं बताना चाहूंगा, हमने समझाया, आपकी बुद्धि ने समझा, तो अभी ये प्रोडक्ट आपको खाना चाहिए. निर्णय लेने का ये है पहला तरीका. कुछ लोग ज्यादा बुद्धिशाली है, ये पहला तरीका उनको मंजूर नहीं है. चलिए दूसरा तरीका में ये है कि आपको मिलेगा 3 से 5 करोड़ रुपया. अगर मैं कहूँ आपको 18 घंटा काम करना है रोज और 7 दिन करना है, 3 करोड़ मिलेगा, तो यहाँ कोई भी ना नहीं बोलेगा, मुझे लगता है. नहीं बोलेगा ना? बस वैसे ही काम मैं आपको दे रहा हूँ. 25 मरीज ठीक हुए, उसके पास जाने का, उसका इंटरव्यू लेने का, उसके बाजू वाले को पूछने का, उसकी फाइल देखने का, उसको डॉक्टर को मिलने का, उसके बाद ये दवा लो. ये काम 3 करोड़ का नहीं है, उससे भी महंगा काम है. क्योंकि आपके शरीर की कीमत क्या है? बहुत अनमोल है. निर्णय लेने के लिए ऐसा काम कर सकते, क्योंकि ये निर्णय लेने के लिए काम करोड़ों का डिसीजन है, समझिए. नहीं तो नुकसान क्या होगा आपको पता नहीं है. ये दूसरा तरीका भी मंजूर नहीं है, तो तीसरा तो बहुत ही खूबसूरत तरीका है निर्णय लेने का. कि अभी कोई निर्णय नहीं लेने का, 5 साल बाद सोचेंगे पड़ोसी को अच्छा होगा था. ये तीसरा तरीका है. तो ये दवा एक रिवॉल्यूशन है हेल्दी इंडिया अभियान के लिए. अभी हम एक एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे. तो देखिए, 200 साल पहले की अगर बात करें, जो अंग्रेजों ने डेटा निकाला था, अंग्रेजों ने एक एनालिसिस निकाली थी 200 साल पहले, तो पता चला अंग्रेजों को कि सिर्फ 8% लोग ही बीमार रहते हैं, बाकी सब हेल्दी है. तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये मामला ठीक नहीं है, 8% लोगों को भी बीमार नहीं रहना चाहिए. इसलिए एक नए साइंस की खोज शुरू की गई, और वो साइंस आया एलोपैथी. और एलोपैथी आया आज से 350 साल पहले. लेकिन 350 साल पहले एलोपैथी की नींव डाली गई थी, तब ये साइंस परफेक्ट नहीं था. सारी मेडिसिन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलती. ट्रायल एंड एरर बेसिस का क्या मतलब है कि एक मरीज को दिया, अच्छा हो गया, सेम मेडिसिन सेम टाइप के दूसरे मरीज को दी, तो मर गया, तीसरा सीरियस हो गया. इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर. और ये मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, जो डॉक्टर है उनको मालूम है. ऐसा उस वक्त चलता था जब इसकी खोज हुई थी. तो मैं बात कर रहा हूँ 1779 की. 1779 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन एमडी डॉक्टर हुए, यानी कि आज से 250 साल पहले. और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की. उन्होंने प्रैक्टिस में यही देखा कि कोई मामला सब गड़बड़ है, गोलमाल है सब. तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी. उनको 23 लैंग्वेज का नॉलेज था. तो उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया रोजी रोटी के लिए. और ट्रांसलेशन करते करते हिपोक्रेट की एक बुक, हिपोक्रेट जिसको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट नाम का एक आदमी 2500 साल पहले हुआ था, जिसने हेल्थ के ऊपर कुछ प्रिंसिपल लिखे थे. उसको हम कहेंगे कि वेस्टर्न ऋषि हिपोक्रेट. और वो बुक का एक सेंटेंस था, लाइक योर लाइफ, उसको ट्रांसलेशन करने में वो रुक गया. और एक नए साइंस की खोज हुई, जिसका नाम है होम्योपैथी. लाइक योर लाइफ का क्या मतलब है? जैसा लोग वैसी दवा. यानी कि जो दवा
रोग के सिम्टम पैदा कर सकती है, वो दवा उस रोग को ठीक कर सकती है। तो समील हनीमैन ने सबसे पहले सिंकोना बार्क नाम की एक जड़ी बूटी जिसका अर्क निकाला, एक मरीज को पिलाया, मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, सब में मलेरिया के सिम्टम डेवलप होने लगे। फिर उसने एक्चुअली जिसको मलेरिया था उसको दिया तो ठीक होने लगे। इस तरह एक साइंस की खोज हुई। उसके बाद इटाली की बात है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ये साइंस लोगों को टीच करना शुरू किया। तो इटाली के एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर हनीमैन जर्मनी के थे। इटाली के एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर काउंसिलर मेट्टी। उसने होम्योपैथी सीखा और उसने कहा होम्योपैथी साइंस परफेक्ट नहीं है। लाइक पहले प्रिंसिपल गलत है, उसने कहा प्रिंसिपल होना चाहिए सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, उसने बनाया कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर प्रिंसिपल बनाया। बॉडी की मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, सेल्स की मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मेडिसिन भी कॉम्प्लेक्स चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे होती है, जैसे कि ये आदमी को मेडिसिन दी एक सिंकोना बार, तो इनके अंदर जो जो सिम्टम डेवलप हुए नोट डाउन किए गए। तो इस तरह सिम्टम नोट डाउन करके फिर एनालिसिस निकाली जाती है। जिस पेशेंट के ऊपर ड्रग रिसर्च होती है वो हेल्दी है, वो हम कैसा मानेंगे, उसकी अपनी भी एक प्रकृति है, उसके अपने भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो उसने ऐसी मेडिसिन बनाई कि कई कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होता है। ऐसे करके साइंस जो ये डेवलप हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं खोज चलती रही। ये 8% लोगों के चक्कर में हुआ। ये हम देखेंगे ये परसेंटेज कहाँ जा रहा है, 8% लोग के कहाँ से कहाँ पहुँच रहे। तो इस तरह ट्रायल एंड बेसिस पे तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर 10 साल में एक सर्वे करती है और डाटा बनाती है हर 10 साल में। तो हम बात करेंगे अभी कि 122 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। उस पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं अलग अलग डिसीज में, तो सबसे पहले देखेंगे कि 122 करोड़ के पॉपुलेशन में से सिर्फ 25 या 30 करोड़ लोग हेल्दी है, यानी कि 20% लोग हेल्दी है ऐसा मान के चले अगर, तो बाकी बीमार है। तो बीमारी का डेटा एनालिसिस गवर्नमेंट का क्या मैं बता रहा हूँ। 5 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है और जिंदगी भर उनका चलने वाला है। और जिंदगी भर चले उससे भी बड़ी समस्या क्या है कि ये डायबिटीज को फादर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं और मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं इसको। इससे पैदा होगा नर्व्स की बीमारी या आंखों की या हार्ट की या दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और आगे चल के विद इन अ शॉर्ट टाइम ये 10 से 12 करोड़ हो जाएगी। अभी बात करें लंग्स की बीमारी के, अलग अलग लंग्स इन्फेक्शन है, इरिटेशन है, एलर्जी है, अस्थमा, ऐसे 10 से 12 करोड़ लोग इंडिया में है। 15 से 16 करोड़ लोगों को हड्डी की बीमारियां है लेके घूम रहे हैं और 9 से 10 करोड़ लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम है और 20 से 22 करोड़ लोगों को कुछ न कुछ आंखों के संबंधित बीमारी है। किसी को कम दिखता है, किसी को कलर अलग दिखता है, ऐसी अलग अलग तरह की बीमारी है। आंखों की बीमारी की बात आई है, आंखों की बीमारी की एक बात आई है, तो एक मरीज को लूज मोशन हो गया, स्टमक पेन हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने पूछा भाई तूने क्या खाया था, तो बोले कल रात को कच्ची कच्ची रोटी खा ली थी इसलिए हुआ। आंख के ड्रॉप लिख के दी, इसको आंख की बीमारी है, देखा नहीं क्या कच्ची रोटी। तो ऐसी भी बीमारी होती बीमारी को। तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो 25 से 30 लाख डॉक्टर लोग हैं, 25 से 30 लाख डॉक्टर है और जितने मरीज है उसको डिवाइड करें तो एक डॉक्टर 24 घंटा भी मरीज को चेक करते चिट्ठी लिखते रहेगा तो भी वो कवर नहीं कर सकता, इतने मरीज रियल में है। और चिट्ठी लिख के भी क्या करेंगे, बहुत चीज की दवाई नहीं है। तो आज हम उस मुकाम पे जाके खड़े हैं और ईश्वर ने हमेशा कुछ नई रचना की है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो कहता है मैं पैदा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ जब जब कोई साइंस का पतन होता है तो एक नया साइंस पैदा होता है इंसान के जीवन में क्रांति लाने। तो ये क्रांतिकारी साइंस है जिसका नाम है नोवेल पेप्टाइड थेरेपी या इम्यूनोमोड्यूलेटर, जो दवा है इम्यूनोलॉजी। तो अभी दवा के बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, सब देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं कितने लोग बीमार हैं। यही डेटा का यहाँ एनालिसिस करें रेशियो में तो बस इसी तरह यहाँ पे भी मरीज निकलेंगे। यहाँ पे डायबिटीज के मरीज हो गए, कहीं हाई बीपी के मरीज हो गए,
कोई ना कोई बैठे होंगे, यानी कि जहाँ जहाँ जाओगे कहीं ना कहीं मरीज तो है ही, यानी ये हमारी जो दवा है ये बड़ी अद्भुत है। अब हम बात करेंगे काम के बारे में। दवा तो अच्छी है देख ली, अब दवाई का निर्णय भी देख लिया। अगर इतनी अच्छी दवाई है तो हर आदमी खाना चाहेगा, हर आदमी खाना चाहेगा डेफिनेटली। मार्केट में एक बुक है जिस बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, 175 रुपीज की मिलती है। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, ये बुक का नाम है। जोक नहीं कर रहा हूं, अवेलेबल है, खरीद सकते हैं आप। उसके पहले पन्ने पे लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है। और ये दवा खाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन लगता है जो मैं दे चुका हूं। बराबर? तो जो दवाई आप खाते कितनी डेंजर है गूगल में देखिए, फिर भी आप खा रहे हो। इतनी अच्छी हम दवाई बता रहे हैं तो क्वेश्चन है, बहुत सोचते हैं साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, इफेक्ट ही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंसान को जगाने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों बहुत टाइम लगता है? क्योंकि जगाया उसको जाता है जो सोया हुआ है, जो सोने का ड्रामा करता है उसको क्या जगाएगा? तो काफी लोग समझने को ही तैयार नहीं है, उसको नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाजू वाला तो समझाएगा ही। पड़ोसी एक दिन वो खाएगा, आपको कहेगा खाओ, आज मौका है उसको खिलाने का, कल वो आपको खिला रहा है। अगर ये दवा आपको 50% डिस्काउंट मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं? यस। फ्री में मिले तो बहुत अच्छा। सोने पे सुहागा, फ्री में मिले तो सोने पे सुहागा। और दवाई खाने के लिए पैसा मिले तो हाँ, मारू है मारू, तारू मारू, सही है। बराबर ना? मेरा तो मेरा है, तेरे में मेरी भागीदारी है। ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया है, हम कंपनी के साथ करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये दवा आपको 50% डिस्काउंट में कैसे मिले। हाँ, शॉर्ट में देखेंगे। थोड़ा सा थोड़ा बस बस बस, क्योंकि ये बाजू वाले लोग भी देख पाए, ये बाजू वाले भी देख पाए। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, हड्डियों की बीमारी, इन दिनों बहुत है हड्डियों की बीमारी। ટેકા વગરની સરકાર ન ચાલે. લખણ સાહેબ ટેકો તો જોઈ, ટેકા વગરની સરકાર નમી જાય. Severe osteoarthritis. चलिए छोड़ दो, उसको हटा दो, ये कुर्सी पे रख दो, बढ़िया है। उसको हटा दो, कोई बात नहीं। हाँ, खड़ा रख दो कुर्सी पे। आप खड़े हो। नव ग्रोथ फैक्टर ठीक से काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है। छोड़ दो। टांगा गरम गरम रखिए. 1300 रुपया MRP की एक बॉटल है, आपको दिखाया गया भी है। हाँ,
1300 रुपये MRP की एक बॉटल है 300 mg की 300 mg की एक गोली है, ऐसे 90 गोली है। इसकी कीमत है 1300 रुपीज। लेडीज लोग मार्केट में जाती है, भैया जी भिंडी कैसा है 8 रुपये पाव, 6 रुपये में देता है क्या, वो नहीं देता तब देखने कैसा, तो मुंह बना के वो लोग जाते हैं, कुछ गड़बड़ करते ज्यादा देखा है मैंने, आप भी देखना मार्केट में। देखो डिस्काउंट देता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेडिकल स्टोर में डिस्काउंट मिलता है क्या? बाईपास कराने जाओ मिलता है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले आपको एक अकाउंट खुलाना होगा। अकाउंट कैसे खुलता है आपको पता ही है, बैंक में कैसे खुलता है। बैंक में थोड़े से पैसे डिपॉजिट किए अकाउंट खुलता है। यहाँ पे भी 2600 रुपया डिपॉजिट करो, आपका अकाउंट खुलेगा। अकाउंट खुलता है तो 2 बॉटल आपको फ्री में गिफ्ट मिलती है 2600 रुपये में। 2 बॉटल मिल गई 2600 रुपये में, अकाउंट खोलने का पैसा वसूल बराबर। अकाउंट खुलने के बाद जब एक बॉटल खरीदते हैं तो आपको 1000 रुपये में मिलती है, 300 रुपया डिस्काउंट मिलता है। ₹1000 में मिलती है, 300 रुपया डिस्काउंट मिलता है। ऊपर से कंपनी आपको 15 पॉइंट देती है। जैसे सुपर स्टोर में कुछ खरीदो तो पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे 15 पॉइंट मिलता है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है, हर कंपनी 4 आना 8 आना देती है पॉइंट की, ये कंपनी 1 पॉइंट का 10 रुपया देती है। यानी कि जब अकाउंट खोलने के बाद एक बोतल खरीदते हो तो 1000 में मिलती है, 300 डिस्काउंट है, 15 पॉइंट मिलता है, 150 रुपया मिलेगा 15 पॉइंट का कंपनी की ओर से। तो ये आपको 1300 रुपए की बोतल पे 450 का मुनाफा होता है, यानी घर में पड़ती है 850 में। ये 27-28% बेनिफिट हो गया। कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। अरे यहाँ मिल रहा है। चलिए ऐसा जब दूसरी बोतल खरीदेंगे तभी भी 15 पॉइंट, तीसरी पे भी, चौथी पे भी 15 पॉइंट मिलेगा। लेकिन जैसे आप 5वीं बोतल खरीदते हो कंपनी आपको 18 पॉइंट देती है। 5वीं बोतल से कंपनी आपको 18 पॉइंट देती है, 180 रुपया मिलेगा। अब मुनाफा होता है 480 का। ऐसा 6ठी बोतल, 7वीं बोतल, 8वीं बोतल, 9वीं बोतल तक चलता है। हर बोतल पे आपको 18 पॉइंट मिलेगा। जैसे आप 10वीं बोतल खरीदते हैं कंपनी आपको 21 पॉइंट देती है, यानी 210 रुपया मिलेगा। 21 पॉइंट का टोटल मुनाफा 510 रुपया। ऐसा चलता है 19 बोतल तक। जैसे आप 20वीं बोतल खरीदते हैं कंपनी आपको 24 पॉइंट देती है। 24 पॉइंट का 240, 300 डिस्काउंट पहले ही मिला है, टोटल मुनाफा 540। ऐसा करते करते आप अपने अकाउंट से 150 बोतल खरीद लेते हैं, फिर कंपनी आपको कंटिन्यू पर बोतल 36 पॉइंट देगी और 300 डिस्काउंट मिल रहा है। 36 पॉइंट का 360, 300 डिस्काउंट यानी 660। 1300 रुपए की बोतल घर में पड़ती है 640 में। कोई नहीं खुश है, क्योंकि मुझे मालूम है आप इंतजार कर रहे हो फ्री में कब मिलेगा। शादी में खाना फ्री में मिलता है तो हम भूल जाते हैं क्या? हम भूल जाते हैं खाना। हम क्या करते? खा। हम भूल जाते हैं खाना, हम करते हैं खा। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, उसका इंतजार है, मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है। बचपन से लेकर आज तक यहाँ बैठे हुए सब लोगों ने इतना काम किया है कि आप लोगों के अकाउंट में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ होना चाहिए। सभी लोगों ने इतना काम किया है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोगों के अकाउंट में उतना पैसा नहीं है। तो आप बोलोगे हमने तो कुछ काम नहीं किया है। चलिए मैं बताता हूँ बचपन में क्या किया था। मैंने भी किया, आपने भी किया ही होगा। जब कोई चॉकलेट अच्छी लगती है तो हम कहते हैं अपने दोस्तों को ये कंपनी की चॉकलेट बहुत अच्छी है, आपके कहने पे उसने खाना शुरू किया। कहीं पतंग मांझा अच्छा मिलता है, आपने कहा अच्छा मिलता है तो आपके कहने पे लेना शुरू किया।
आपने कहा ये पिक्चर बहुत अच्छी है तो आपके कहने पे कईयों ने देखी। आपने कहा ये होटल का खाना बहुत अच्छा है तो आपके कहने पे लोगों ने खाया। आपके कहने पे कोई कंपनी के जूते लोगों ने खरीदे। बहुत कुछ आपके कहने पे दुनिया में हुआ है, लेकिन फायदा किसका हुआ? कंपनी का। कंपनी ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको पहचानती नहीं है, क्योंकि उस कंपनी में आपका अकाउंट ही नहीं है। बाटा में